میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے رامائن، اس سے بھی میں منتر سناؤں گا، لیکن دیکھیں جو بھی میں بولوں گا اسلام کی حقانیت پہ بولوں گا، اسلام کی خوبصورتی پہ بولوں گا، تعلیم پہ بولوں گا کہ اسلام نے جو تعلیمی معیار لوگوں کو بتایا ہے اگر لوگ آج اس پہ بھی اگر عمل کر لیں تو یقیناً قیصر و کسریٰ کے تاجدار بنتے نظر آئیں گے۔ غور سے سنو پیارے، اب ایک منتر سنیے ذرا تیزی کے ساتھ۔ کتاب کا نام ہے شریمد بھاگوت گیتا، پیج نمبر ہے 23۔ اس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ادھرما بھی بھوات جشنا پر دشینتی کل استریجا استریشو دشتاشو والشنی جایتے ورن شنکرا یو مام جمنادیم چویتی لوک مہیشورم اسموڈھا سمرتیشو سروپا پائی ہے پرمچیتی گلیشیم چرنم شیشمنم ششانکم چرنم شیشمنم پروتم چرنم شیشمنم گنگا جلم مشنانم پنڈتم گودانم سواہا کلکی اوتار میار پنتم پرتوی مدھم اور وسکیارتم بلون سوانم لم لجیم پشپپنم تبشیم ویرم مہاویر گروم پرانم پرادیپم سوموتی وشنویشم سروپام اسما سگماروہا دیو دتم جگت پتی اسنا سادو اشت اشچرج گلوتی گریہ نیل گندھا اتی جوتی میں پرکاشم نتمشتگ بھنشتم پربھو گلگانم ناف بریدہ لیڈ گچھدین پرکرم پوترم گنگا شنانم متی پوترم پوترم پوترم۔ اور سنو لوگو، جس زبان میں آپ چاہو گے جس زبان میں آپ سننا چاہو گے اس زبان میں حضور کی تعریف آپ کو سننے کو ملے گی۔ زبان کوئی بھی ہو لیکن چرچا مصطفیٰ کا ہوتا ہے، زبان کوئی لینگویج کوئی ہو لیکن پرشنسا مصطفیٰ کی ہوتی ہے۔ بلکہ یہ دیوانے جتنے یہاں پر بیٹھے گئے یہ سارے لوگ کہتے گئے کہ او لوگوں یاد رکھنا ساری دنیا چیزیں بدل سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ ہم تو کہتے گئے ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز کانفرنس، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب سنو ایک پنڈت نے کیا کہا ہے، پنڈت کا نام ہے پنڈت سومناتھ ورما۔ پنڈت نے کہا حضور کی تعریف بیان کرتے ہوئے جو بھی حضور کا عاشق ہو جائے گا، جو بھی حضور کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اس کا بیڑا آخرت میں بھی اونچا پورا مجمع، اس کا بیڑا آخرت میں بھی پار ہوتا ہے۔ وہ پنڈت کہتا ہے شرنಯ گرونی مگا سکھ ساگر اتیر چار مگا شبھ ساگر چرنن ہے گرو نام اجاگر کرپا کرو گے شبھ نام سکھ ساگر گرو ہر کرپا منوگر پاوے اتیر چار مگا سکھ پاوے اور جے گرو نام کر جے بے بینا محمد پار نہ ہو بے۔ اب ذرا غور سے سنو لوگو، معین الدین قادری نے جو منتر پڑھا ہے انشاءاللہ میں اس کا بھی خلاصہ کروں گا، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایسے جلسوں میں میں اس لیے پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں کہ لوگوں یاد رکھنا جو لوگ آج کہتے ہیں یہ مسلمان تو بھڑک جاتا ہے، یہ مولانا تو بھڑکاتا ہے، یہ مسلمان کا بچہ بھڑک جاتا ہے، اللہ کی قسم کہتا ہوں مسلمان کا ایک بھی بچہ اپنی ماں کے کو گالیاں دیتا ہوا کسی کو سن لے وہ تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن آج میں بتاتا ہوں کہ مسلمان بھڑک کیوں جاتا ہے، مسلمان پریشان کب ہونے لگتا ہے، مسلمان اپنی جان کو کب ہتھیلی پہ لے کر نکلنے لگتا ہے۔ اب کی ان کی ماں کو کوئی گالی دے، ہماری بات چھوڑو، مفتی جاوید صاحب کی بات چھوڑو، حضرت کی بات چھوڑو، جتنے اساتذہ گئے یا طلبہ گئے ان کی بات چھوڑو، اگر یہاں مدرسہ غریب نواز
में पढ़ने वाला एक 10 साल के बच्चे को उठाओ और उसको उठा कर पूछो, ये बताओ अगर तेरी माँ को गालियां दी जाए क्या तू बर्दाश्त करेगा? क्या तेरे बाप को गालियां दी जाए क्या तू बर्दाश्त करेगा? वो बच्चा मचल कर जवाब देगा, सुनो सुनो, हमारी माँ को गालियां दोगे, हो सकता है कि मैं बर्दाश्त कर लूं। हमारे बाप को गालियां दो, हो सकता है कि मैं बर्दाश्त कर लूं। हमारी बहन को गालियां दो, हमारे खानदान को गालियां दो, हो सकता है मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन अगर मुस्तफा जाने रहमत की बात आएगी, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आएगी, आमना के लाल की बात आएगी, तो फिर याद रखना हम अपने खानदान को, अपनी जान तो दे सकते हैं, लेकिन हुजूर की नामूस पे अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि हम तो जीते गए, ऐसे जीते गए कि या रसूल अल्लाह, जितने लोग यहाँ पर बैठे गए ये कहते गए, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हमारे यहाँ का हर बच्चा कहेगा, लेकिन मेरे भाई गौर से सुनो प्यारे, यहाँ जितने लोग आए हो जलसे में, आप अगर बोलने का तेवर पैदा करोगे, मोइनुद्दीन कादरी भी आपकी थोड़ी देर खिदमत कर देगा, लेकिन शर्त है आपको बोलना होगा। आप शाम से लेकर मैं देख रहा हूँ जनाब सबा करीम साहब, क्या नाम है, सबा करीम साहब, वो नाते मुस्तफ़ा पढ़ रहे थे, दानिश रजा हबीबी ये नाते मुस्तफ़ा सुना रहे थे, लेकिन आपकी जबान हिल नहीं रही थी, आप नहीं बोलते हो। लेकिन याद रखना, हमने एक सोशल मीडिया पे क्लिप देखा, एक ऐसा छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है, वो दूध पीता बच्चा अपने हाथ में बोतल लेकर खड़ा है, सामने से दुश्मन की टैंक है और वो टैंक के जरिए, वो तोप के जरिए निशाना लगा रहा है, लेकिन उस बच्चे के जज्बे को सलाम, उस बच्चे की हिम्मत को सलाम। वो शीरखार बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल है, वो बच्चा अपने हाथ में लेकर दूध की बोतल लेकर दूध पी रहा था। जैसे कि उस बच्चे ने देखा कि वो दुश्मन आतंकवादी वो टैंक के जरिए हमला के लिए निशाना लगा रहा है, वो छोटा सा 2.5 साल का बच्चा अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया, दुश्मन के टैंक की तरफ दूध की बोतल से निशाना लगाने लगा। लोग हैरान हो गए, ए बच्चा ये बता तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये जज्बा कहां से आया, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई? तो बच्चे ने मचल कर जवाब दिया, ओ लोगों, दुनिया की माँ अपने बच्चे को जन्म देती है खानदान के लिए, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। जरा हाथों को उठाओ और पूरा मजमा ललकार कर बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रखे, आप चुप रहे। ये देखे हमारी बिरादरी के लोग कैसा बोलते हैं, ये जब जब इन्होंने आवाज उठाई है यकीनन बातिल ताकतों को घुटने टेकने पड़े हैं। हमारे उलमा ने जब जब आवाज उठाया है यजीदी खेमों में जलजला पैदा हो गया है। ये हमारी बिरादरी ही के आलिम थे अल्लामा फजले हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा इरशाद फरमाया था। ये उलमा को देखिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब पूरा मजमा आपको बोलकर दिखाना है, मौला जितने लोग तेरे महबूब के नाम पर हाथों को उठा रहे हैं, मेरे मौला उनके हाथ में कभी मुहलिक बीमारी न होने पाए। जरा पूरा मजमा हाथों को लहराओ और पूरा मजमा जवाब दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। माशाअल्लाह। अब जरा गौर से सुनिए प्यारे, मैं जो कहना चाह रहा था, आज हर इंसान को ये चाहिए, ये तरक्की का दौर है मेरे भाई। अब गौर से गुफ्तगू समाअत कीजिए, तरक्की का दौर है। आज हर मैदान में लोग अपना लोहा मनवाना चाहते हैं, चाहे वो तिजारत की मंडी हो, चाहे वो फसल के मामले में हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो। हर मैदान में आदमी
तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। हर इंसान ये सोचता है, हर कौम ये सोचती है कि हमारा ही कब्जा हर मैदान में रहे, खेल के मैदान में हमारा कब्जा रहे, सियासत के मैदान में हमारा कब्जा रहे, तिजारत के मैदान में हमारा कब्जा रहे। लेकिन याद रखना लोगों, मैदान कोई भी हो, दुनिया में जितने भी सियासत के मैदान हो, चाहे वो तिजारत के मैदान हो, चाहे वो बिजनेस का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, जितने भी मैदान हो, हर मैदान में तरक्की के लिए एक चीज का होना जरूरी है, उसे इल्म कहते हैं। जिस कौम के अंदर इल्म आ जाए तो यकीनन वो कौम हर मैदान में बाजी मारती नजर आती है। वो कैसे, मैं आपको एक जुमले में समझाऊं, जरा याद कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, फारान की चोटी से हुजूर ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, उस वक्त अरब का आलम क्या था, अहले अरब कैसे लोग थे। वहां के अहले अरब का आलम यह था कि लोग अगर कोई औरत दूसरी ज़िना के लिए न मिलती तो वो अपनी माओ के साथ ज़िना कर लिया करते थे। अहले अरब की पोजीशन उस वक्त ये थी, जिस तरह माँ अपने बच्चों को, आज अगर बच्चा को खांसी हो जाए या बच्चा न सोए, नींद न आए, उसे अगर वो यानी कि वो खांसी की दवाई पिलाती है तो उस वक्त अगर बच्चा रोता था, नींद की दवा के अलावा वो लोग उस वक्त माएँ अपने छोटे बच्चों को उनके मुंह में शराब डाल दिया करती थी। अब बताएं वो कितने जुर्म, कितने चरम सीमा पर होगा। उस वक्त किस तरह तारीकी होगी, किस तरह जुल्म में के अंधेरों में लोग डूबे हुए होंगे। कुफ्र और शिर्क का आलम यह था। खाना काबा के अंदर सैकड़ों मूर्तियों को लोगों ने वहां जाकर बैठा दिया था। काबे का तवाफ वो लोग नंगे होकर किया करते थे, यहां तक के सफा मरवा जैसी पाक जगह पर भी वो ज़िना करने से नहीं चूकते थे। अल्लाहु अकबर। बेटी अगर किसी के घर में पैदा हो जाती थी, लोग उसे जिंदा कब्र में डाल देते थे। बेटी का बाप होना यानी वो शर्मिंदगी महसूस करते थे। अगर कोई कमजोर बच्चा घर में पैदा हो जाता था, उसे जाकर पहाड़ से नीचे फेंक देते थे और ऐलान करते थे वो लोग अहले अरब के कमजोर को जमीन पे जीने का कोई हक नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस समाज में शराब नोशी आम हो, जिस शराब में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में कुफ्र और शिर्क की इंतहा यानी आखिरी हद तक लोग पहुंच गए हो, जिस समाज में ज़िनाकारी आम हो, जिस समाज में जालिमों की ताकत इतनी बढ़ गई हो कि वो यानी यतीमों के माल को हड़प लेता हो, तो बताएं उस जगह हुजूर क्या करते। हर एक उन्वान पर हुजूर ने मेहनत नहीं की। हुजूर अगर शराब पर मेहनत करते तो फिर ज़िना पे मेहनत कौन कर, ज़िना छुड़वाने पे मेहनत कौन करता। हुजूर अगर ज़िना के खिलाफ आवाज उठाते तो फिर यतीमों के माल जो लोग खा रहे थे उनके ऊपर आवाज कौन उठाता। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारे मैदान पे मेहनत करने के अलावा सिर्फ एक मैदान को चुना। हुजूर ने उन लोगों को इल्म के जेवर से आरास्ता कर दिया। हुजूर ने उन लोगों को तालीम दे दिया, इल्म दे दिया। वो लोग जो बकरियां चराया करते थे, नमक काफूर में फर्क नहीं समझ पाते थे, जब इल्म के जेवर से हुजूर ने उन लोगों को आरास्ता किया, जब वो लोग चलते थे निगाहें नीची रहती थी, ऐसा लगता था इंसान नहीं कुदसियों की एक जमात जा रही है। ये इल्म की बरकत थी। लेकिन मेरे भाइयों, इल्म कहते किसे है और इल्म कितना जरूरी है, आपको मैं एक बात से समझा दूं। आपने मक्खी को तो देखा होगा, जरा हाथों को उठाओ, बोलो बोलो, देखा है कि नहीं देखा है। आपसे मैं एक बात इस जगह ठहर के और कहना चाहूंगा। आपने ये सुना होगा हिंदुस्तान पे मुस्लिम बादशाहों का कब्जा रहा, 700 या 800 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे। लेकिन किस बुनियाद पे? वो मुसलमान क्या शराबी थे? क्या वो मुसलमान जुआरी थे? आप अक्सर बादशाह की तारीख उठाकर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा उनमें से कोई आलिम दीन थे,
تو کوई हाफिज कुरान बादशाह थे। ऐसे ही हुकूमत नहीं होती है। इल्म के बगैर अगर कोई चाहे मैं हुकूमत कर लूंगा तो याद रखना वो हुकूमत नहीं कर सकता है। आपने हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम तो सुना है। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? क्या वो दुनियावी बादशाह की तरह है? नहीं मेरे भाई, औरंगजेब आलमगीर को लोग आज जिस तरीके से जुल्म और बर्बरता के लिए याद करते हैं, हजरत औरंगजेब आलमगीर वो कौन है? सीधा साधारण बादशाह का नाम नहीं है, किसी जागिल बादशाह का नाम नहीं है, बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जो दिन भर दिल्ली के तख्त पर बैठकर अखंड भारत पर हुकूमत किया करते थे, लोगों की फरियाद सुना करते थे, और जब ईशा की आजान होती थी तो मस्जिद में जाकर मुसल्ले पे खड़े होकर हजरत औरंगजेब आलमगीर लोगों को कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हाफिज कुरान औरंगजेब आलमगीर है। आपने औरंगजेब आलमगीर जो लोग कहते हैं ये मुस्लिम बादशाह ने ऐसा किया है, मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, इस मुसलमान बादशाह ने ऐसा किया है, हजरत औरंगजेब आलमगीर का नाम आता है, कोई आपके सामने कुछ भी बोलकर चला जाता है, लेकिन आप भी हाँ में हाँ मिला देते हो। ये किस वजह से? तालीम की कमी की वजह से। अगर हमारे बच्चे हिस्ट्री पढ़े होते, अगर हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होते, अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते, कोई अगर औरंगजेब आलमगीर को गालियां देता तो वो खड़ा हो जाता और वो कहता सुनो ये इज्जत लूटने वाला नहीं बल्कि किसी पंडित की बेटी शकुंतला देवी की इज्जत बचाने वाले का नाम हजरत औरंगजेब आलमगीर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, मैं माँ बहन से गुजारिश करूंगा कि आप आगे बढ़ जाएं। पीछे बहुत सारी माँ बहनें खड़ी हैं, उनको बैठने की जगह मिल जाएगी, और हमारे नौजवान भाई भी पीछे बहुत सारे खड़े हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि बीच में बहुत सारी जगह खाली है, आप हजरात रास्ते से हटकर अपनी जगह लेकर बैठ जाएं। जरा गौर से सुनिए लोगों, जो लोग कहते हैं तालीम हासिल करने की क्या जरूरत है, हमारे समाज को तालीम हासिल करने पे, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर 10 साल हमारी कौम के लोग, सिर्फ 10 साल, ज्यादा दिन नहीं, 10 साल अगर एजुकेशन पे लोग मेहनत कर ले, अगर इल्म पे मेहनत कर ले, तालीम हासिल करने पे मेहनत कर ले, तो अल्लाह की कसम कहता हूं सारे मैदान पे हमारे नौजवान होंगे, हर जगह इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन तालीम की जरूरत है। आज मैट्रिक तक हमारा कितना बच्चा रहता है? मैट्रिक में अगर 50 बच्चे मुसलमानों के रहते हैं, इंटर में जाते जाते सिर्फ 5 बच्चे रह जाते हैं। पढ़ाई इसी का सिर्फ नाम नहीं है कि 8 क्लास पढ़ लिया तो पढ़ा हुआ कहने लगा, 10 क्लास पढ़ लिया तो पढ़ा हुआ कहने लगा। कितने डॉक्टर हैं अपने समाज में? गौर से सुनो प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी जो कह रहा था, लोग कहते हैं मेरे भाई मुसलमान बादशाह ऐसे थे, मुसलमान बादशाह ऐसे थे, लेकिन याद रखना एक बादशाह मैं बताऊं, आज तुम किसी नेता के चक्कर में मुसलमान का बच्चा पढ़ने में तो पीछे रहेगा, सब नेतागिरी में जाने को सोचता है। अभी कदम उठाना सीखा, हम भी नेता बनेंगे, हम भी नेता बनेंगे। अगर नेता बनने का शौक ही है तो किसी दुनियादार नेता की तरह मत बनो, बल्कि अगर बनना है तो फारूक आजम की तरह नेता बनने की कोशिश करो। वो फारूक आजम जिसकी हुकूमत लोगों के तलों पर भी है, लोगों के दिलों पर भी है, वो फारूक आजम है। आज अमेरिका में आग लग गई, पूरा अमेरिका तबाह होने के कगार पे, सारे लोग चीख रहे हैं, सारे लोग चिल्ला रहे हैं। देखो बादशाह अगर बनना है, अगर लीडर बनना है तो ऐसा लीडर बनो जैसा फारूक आजम थे। अमेरिका वालों को तो डूब कर मर जाना चाहिए। जो सुपर पावर अपने आप को अमेरिका कहती थी, जब आग लगी है जंगलों में
अमेरिका जब तबाह होने लगा, सारा सिस्टम उसका फेल हो गया, सारा या एरिया उनका जलने को कगार पे पहुंच गया, लेकिन अब उसे आग बुझाने की कोई तरकीब न सूझी। मैं कहना चाहूंगा, ओ अपने आप को सुपर पावर कहने वालों, तुम कहते हो अपने आप को सुपर पावर, लेकिन एक आग तुझसे नहीं बुझ रही है, एक आग पे कब्जा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन देखो हमारे लीडर को, देखो हमारे कायद को, हमारा लीडर कैसा है, हमारे कायद कैसे है। मदीना शरीफ है और वो मस्जिद नबवी है, हजरत फारूक आजम है। फारूक आजम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। अचानक एक शख्स आया जिनका नाम तमीम दारी है। तमीम दारी आकर कहने लगे, हजरत फारूक आजम, ए अमीरुल मोमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मदीने के जंगल में आग लग गई है। आग बड़ी रफ्तार के साथ, तेज रफ्तारी के साथ वो आग यानी हमारी आबादी की तरफ बढ़ रही है। अगर आग को न रोकी गई, हमारी आबादी की तरफ आग पहुंच जाएगी। सुनो फारूक आजम ने क्या जवाब दिया। फारूक आजम ने फरमाया, ले जाओ, दुआ की जरूरत नहीं है। फारूक आजम ने कोई मिट्टी पड़कर नहीं दिया कि जाकर तुम वहां जाकर मिट्टी फेंक देना। फारूक आजम ने अपनी चादर को उतारा और चादर उतार कर दे दिया तमीम दारी को और फरमाया, ले जाओ तमीम दारी। हजरत फारूक आजम से तमीम दारी कहने लगे, ए अमीरुल मोमिनीन, इस चादर का क्या करूंगा, इस चादर से आग कैसे बुझेगी। आग की तासीर तो ये होती है वो कपड़े को जला देती है, फिर ये आग कैसे बुझेगी। तो जरा उलमा भी तवज्जो फरमाए और दुआओं से नवाजे। यहाँ जितने लोग बैठे गए जरा गौर से सुनिएगा। तमीम दारी को चादर देकर फारूक आजम ने फरमाया, एक तमीम दारी, ये चादर लेकर चला था और चादर को मेरी दिखाते जाना आग को, वो आग पीछे भागती जाएगी। तमीम दारी का बयान है कि हम हजरत उमर की चादर को लेकर जब आग के पास गए तो उमर की चादर को देखकर आग ऐसे भाग रही थी जैसे डंडे को देखकर जानवर भागा करता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हजरत उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर दुनिया और आखिरत की आग से जरूर बचा लेगी। ऐसा हमारा लीडर है। अब जरा सुनो प्यारे तालीम हासिल करने वालों, मैं कहना चाहूंगा, आप आज कहते हो तालीम महंगी हो गई है। इधर देखिए जरा, हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। और जरा झूम कर पूरा मजमा, जितनी ताकत अंदर है जरा ताकत लगाकर, जो मर्द बैठे हैं जरा हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, आपने मक्खी देखा है? मक्खी, अरे बोलो ना भाई, मक्खी देखा है? कितनी तरह की मक्खी होती है। एक मक्खी वो होती है जो आपके घरों में रहती है। उस मक्खी की हालत क्या है? जिसने देखा उसने डंडा उठाया या अपना तमाचा उठाया, मक्खी को दे मारा। नकीब साहब ने देखा, मक्खी को मारा। मुफ्ती साहब ने देखा, उस मक्खी को मारा। हजरत ने देखा, उस मक्खी को मारा। मैंने देखा, मैंने भी उस मक्खी को मारा। लेकिन एक मक्खी होती है जिसे मधुमक्खी कहते हैं। उस मक्खी को किसी को मारते आपने देखा है? नहीं देखा होगा। किस वजह से? ये मक्खी को लोग मारते हैं, जिसने देखा उसने मारा, लेकिन वो मधुमक्खी है। मधुमक्खी क्या करती है? वो मधुमक्खी शहद दिया करती है। इंसान ये जानता है अगर मधुमक्खी को मारेंगे तो फिर हम शहद कहां से पाएंगे? अगर मधुमक्खी को मारेंगे तो शहद कहां से पाएंगे? मैं कहना चाहूंगा, एक मक्खी को लोग